ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بلوچستان میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید ہونے والے 9 افراد میں سے ایک کا تعلق میاں چنو سے ہے۔ غلام سعید والد کی تیمارداری کے لیے گھر آ رہا تھا کہ دہشت گردوں نے شہید کر دیا۔ اس پر دیکھتے ہیں مرزا قمر شہزاد کی یہ رپورٹ۔ فتنہ ال ہندوستان کے دہشت گردوں نے کوئٹہ سے پنجاب جانے والی مسافر بسوں سے 9 مسافروں کو اغوا کر کے شہید کر دیا۔ میاں چنو کے نواحی گو 7215 سے تعلق رکھنے والے غلام سعید جو کہ پاک فوج کے سپاہی تھے، ان کو بلوچستان میں دہشت گردوں نے بس سے اتار کر شہید کر دیا۔ غلام سعید والدہ کی تیمارداری کے لیے اپنے گھر آ رہے تھے کہ دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ شہید غلام سعید کے پسماندگان میں 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں اور 1 بیوہ ہے۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ آئے روز دہشت گردی کے واقعات نے زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ نہیں، ہمیں گرو ہے کہ اپنے بھائی پہ کہ وہ شہید ہوا ہے، ٹھیک ہے، اپنی دیش کے لیے اس نے جان دی ہے، پر البتہ حکومت سے التجا ہے کہ یہ جو یہ کارروائی ہو رہی ہے ان کو روکا جائے جلد سے جلد، تاکہ عام انسان بھی نا سکون سے آ سکے۔ پاک فوج ہماری انشاءاللہ زندہ باد، انشاءاللہ اور وہ کرے گی، ان دہشت گردوں کو سبق سکھائے گی جیسے انڈیا کو سبق سکھایا ہے۔ انہوں نے حکومت اور پاک فوج سے مطالبہ کیا ہے کہ دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچا کر ملک میں پائیدار امن قائم کیا جائے۔ مرزا قمر شہزاد، NTN نیوز، میاں چنو۔ حالیہ بارشوں کی وجہ سے کوہ سلیمان سے آنے والے برساتی نالوں نے توسہ شریف کے میٹ کے علاقوں میں کھڑی فصلات اور کچے مکانوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ مزید جانتے ہیں سہیل شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ حالیہ بارشوں کی وجہ سے کوہ سلیمان سے آنے والے برساتی نالے بفر گئے۔ نالہ سنگھڑ توسہ میں سیلابی پانی نے توسہ شریف کے 30 سے زائد موازیات اور دریائے سندھ کے علاقوں میں تباہی مچا دی، جس کی وجہ سے نہ صرف چاول، سورج مکھی بلکہ تل کی فصلات بھی تباہ ہو کر رہ گئی ہیں۔ لوگوں کے مکانات گر چکے ہیں۔ اس موقع پر متاثرین نے NTN نیوز سے گفتگو کی۔ جراج باندھے سے میرے نا اللہ بھائی لمبردار ہے سے میں موجودہ لمبردار ہاں سے سارے کو ریسکو والے بھی آندے ہوئے کھڑے ہیں گال کے صاحب سارے کو بڑا سیلاب ہے، بہت دور کنے سیلاب آیا کھڑے سے بہت زیادہ سیلاب ہے سے سارے واسطے مسئلہ ہے۔ آوان ونجن واسطے بھی اتنا خوراک مال دا چارہ نہیں ملتا، کچھ نہیں ملتی، فصلاں سارے تباہ تھی گئے گل گئے بلے بلا فصلات تھے وہاں تیلان کاشت تلن دی آئی کپاہ دی آئی ہر شے دی ختم تھی گئی اسی بس ہوں تھلے تو تے بہان والی گال ہے۔ سیلاب آ گئے اساں اپنا مال مویشی کڈھی وینے بجا تے پکے تے سیلاب دا بہت خطرہ تھی گیا بیٹا شراب وچ۔ میرا نام ایسے ہی اساں بیٹ جرہ دے رہائشی ہے تے اتنا دیتا پہ سو نظر آندا پیا سی سارا جلو کلو سارے گھر یا مال مویشی ہر شے اساں پانی دی ذات دے جائیں پے یا کوئی اللہ دی ذات تو سوا آسرا کوئی نہیں۔ اج نہیں 5-4 سال تقریباً تھیندے پن جندے چ پانی دریا نایا کے پوری تا سارا سیلاب سب کچھ تباہ کیتی ونے۔ ہر سال فصلیں واسطے پریشانی ہے، آمن ونجن واسطے سب تو پہلی دکھ تکلیف واسطے بہت بڑی پریشانی ہے جندے جیسا وڈے مبتلا ہوندے ہیں۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ سیلابی پانی نے نہ صرف ہماری فصلات تباہ کی ہیں بلکہ ہمارے مکانات بھی گر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آمد و رفت کے بھی شدید مسائل کا ہمیں سامنا ہے۔ حکومت وقت فوری طور پر نوٹس لے۔ سہیل شہزاد، NTN نیوز، توسہ شریف۔ رخ کریں گے ہارون آباد کا۔ ہارون آباد اور گرد و نواح میں تیز اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ گرمی کا زور ٹوٹ گیا، موسم انتہائی خوشگوار ہو چکا ہے، تاہم شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں تیز بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، جس سے شہریوں کو آمد و رفت میں دشواری کا سامنا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری رہے گا۔ انتظامیہ نے نکاسیاب کے لیے اقدامات تیز کر دیے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان 2 روزہ دورے پر صادق آباد میں موجود ہیں۔ آج گورنر پنجاب نواز آباد چانگ ہاؤس میں امن کرکٹ میلے کا افتتاح کریں گے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے اکرم خان سے۔ اکرم، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، اس وقت موجود صادق آباد کے نواحی علاقے نواز آباد چانگ ہاؤس میں، جہاں پہ جو ہے پنجاب ہیں، یہاں پہ 2 روزہ دورے پر آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ مقیم ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے یہاں پہ کرکٹ میلے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تو میرے ساتھ کچھ کھلاڑی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں اس بارے۔ جی، میرا نام طاہر ہے اور ہم سندھ 11 سے ہیں۔ جیسے کہ ممتاز صاحب نے جو ہے امن میلے کا جو انعقاد کروایا ہے، بہت ہی خوشائن بات ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا جس شہر کے جو ہے گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں وہاں کے ہسپتال ویران ہوتے ہیں، تو بہت ہی خوش آئندہ عمل ہے، بھائی چارے کا پیغام ہے، امن کا پیغام ہے۔ اور اس میلہ منعقد کرنے پر ہم جو ہے نا
ممتاز چانگ صاحب کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آگے بھی وہ جو ہے ایسے جو ہے میلے جو ہے لگائیں گے اور جو ہے نا امن کا پیغام دیں گے. جیسے کہ آپ نے کھیڑے کی بات سنی، ان کا کہنا تھا کہ یہ جو میلہ ہے سردار ممتاز چانگ نے جو ہے منعقد کیا ہے اور ایسے جو ہے میلے لگائے جائیں، اور جو ہے یہ اس کے مہمان خصوصی گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان ہیں، جو کہ تھوڑی دیر تک یہاں پہنچیں گے اور باقاعدہ جو ہے میچ کا آغاز شروع ہو جائے گا. جی بہت شکریہ اکرم خان، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا. ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ملاوٹ مافیا کے خلاف فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں جاری ہیں. ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر فوڈ سیفٹی ٹیموں نے 55 پکوان سینٹرز کو سیل کر دیا. افتخار سدھو کی رپورٹ دیکھیے. ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ملاوٹ مافیا کے خلاف فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں تیز ہو گئی ہیں. ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر فوڈ سیفٹی ٹیموں نے ضلع بھر میں 50 سے زائد پکوان سینٹر کی چیکنگ کی، جن میں 23 مراکز کو 2,24,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا. پاسکو گودام کے قریب مسالہ چکی کو سنگین خلاف ورزیوں پر بند کر دیا گیا اور بھاری مقدار میں ایکسپائر و ممنوع اشیاء تلف کر دی گئی. اتھارٹی کی ٹیم جاتی ہے، وہاں پہ انسپیکشنز کرتی ہے، جہاں پہ وائلیشنز ملتی ہیں اس پہ جرمانہ کیا جاتا ہے. جہاں میجر وائلیشن ہوتی ہے کہ اڈلٹریشن ہے تو اس کے اوپر مقدمات کا بھی اندراج کیا جاتا ہے اور پروڈکشن یونٹ کی پروڈکشن بند کر دی جاتی ہے. ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق غیر معیاری غذا کا استعمال عوامی صحت کے لیے خطرناک ہے. عوام کو محفوظ اور معیاری خوراک کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے. کیمرہ مین علی حیدر کے ساتھ افتخار احمد، NTN نیوز، ٹوبہ ٹیک. لیا کے چک 125 TDA میں میٹھے پانی کے لیے سولر واٹر ویل کی تنصیب ہوئی، جس کا سابق MP پیر سید رفاقت شاہ گیلانی نے افتتاح کیا. ہمارے نمائندے محمد کامران اس وقت وہیں موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانیں گے. کامران بتائیے گا. بالکل، آج لیا کے چک نمبر 125 TDA پہ یہاں پر ایک سولر واٹر ویل کا یہاں پر لگایا گیا، کیونکہ یہاں پر جو پانی ہے زیر زمین پانی جو ہے وہ خراب تھا. اس کی وجہ سے جس پہ اہلیان علاقہ آج موجود ہے اس کا افتتاح ہوا اور اس پانی کو جب چیک کیا گیا تو پانی انتہائی میٹھا تھا، جس پہ اہل علاقہ بڑے خوش ہوئے. اور اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے پیر سید رفاقت شاہ گیلانی موجود ہے، ان سے بات کریں گے کہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو سکھ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ یہ احساس جو انہوں نے آ کے یہاں پہ لوگوں کا احساس کیا ہے. یہاں پہ زیر زمین پانی انتہائی اس کی صورتحال جو تھی وہ ناقص تھی، اور الحمدللہ آج یہ باقاعدہ سولر واٹر ویل جس کا آج افتتاح بھی ہو چکا ہے، تو میں اس کے لیے ان کا شکر گزار ہوں. خاص طور پہ ان دوستوں کا، کامران بھائی آپ کا، مار شفیق صاحب کا، آپ نے ہماری توجہ دلائی اور آج الحمدللہ یہاں پہ یہ جو اہل علاقہ ہے یہ سب دوست خوش ہیں. اور ہماری یہ جو کاوش ہے چھوٹی سی، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسی طرح سے ان دوستوں کی خدمت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے ان جو ہمارے یہاں پہ دوست موجود ہیں، بزرگ موجود ہیں، ان کی رسپیکٹ کے لیے اور ان کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے، پرائرٹی پہ کام کریں. اور ایک چھوٹی سی جو پوسٹ لگی تھی سوشل میڈیا پہ، اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے کوشش کی کہ ہم یہ مسئلہ جلد از جلد حل کریں اور آج ہم سرخرو ہوئے. بالکل، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک چھوٹی سی پوسٹ کے بعد جو ہے نا اس علاقے کا پانی خراب تھا اور اس کے بعد جو ہے آج ایک سولر واٹر سے لگایا گیا ہے جس سے پانی میٹھا ہے، اور یعنی علاقہ بھی خوش ہیں کہ وہ جو ہے نا ایک میٹھے پانی کے پینے کے قابل ہو گئے. محمد کامران ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. پیر محل کا نادرا آفس نئی بلڈنگ میں شفٹ کر دیا گیا. نئی بلڈنگ میں پارکنگ، ویٹنگ، ٹھنڈا پانی، سایہ، سب سہولیات ایک ساتھ موجود ہیں. پیر محل کے عوام نے چیئرمین نادرا سے پاسپورٹ کاؤنٹر لگانے کی بھی اپیل کر دی. تفصیلات بتا رہے ہیں پیر محل سے نیر شرازی. کی عوام کے لیے جو ہے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. چیئرمین نادرا جناب منیر افسر صاحب اور DG نادرا کاشان احمد اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر کامران شہزاد صاحب کی طرف سے کہ جو نادرا آفس ہے وہ نئی بلڈنگ میں پیر محل سے شورکوٹ روڈ پر شفٹ کر دیا گیا ہے، جہاں پر ایک وسیع عریض جہاں پر جو ایریا ہے وہاں پر پارکنگ ایریا ہے، شہریوں کے لیے ویٹنگ اور بیٹھنے کا انتظام اچھا ہے. دوسری جانب شہری یہاں پر جو یہاں کا عملہ ہے ان سے بہت خوش ہیں، با اخلاق عملہ ہے، بڑے اچھے یہاں کا اسٹاف ہے، بر وقت کام کرتے ہیں اور جو میرٹ کا خیال رکھتے ہیں. دوسری جانب شہریوں نے یہاں پر ایک اور بھی چیئرمین نادرا منیر افسر صاحب اور DG نادرا کاشان احمد صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس اتنی بڑی بلڈنگ میں جو ہے یہاں پر پاسپورٹ آفس کا بھی یہاں پر اجرا ہونا چاہیے، کوئی کاؤنٹر لگنے چاہیے تاکہ لوگوں کو دور دراز نہ جانا پڑے. مقصد کچھ آفس میں گئے ہوئے شہری بھی موجود ہے، ایک شہری سے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اپنی رائے کیا دیتے ہیں اس دفتر کے بارے میں، اس کی لوکیشن کے بارے میں اور سٹاف کے بارے میں. جی، ہم چیئرمین نادرا کے بہت شکر گزار ہیں، انہوں نے ہمارا بہت درینہ مسئلہ حل کیا ہے. پہلے جو
ऑफिस था वो अंदरूनी शहर था, वो जगह भी तंग थी और शहरियों को बहुत सी मुश्किलात होती थी। अब उन्होंने वसी और रीज ऑफिस बना के एक तोहफा दिया है पीर मल की अवाम को। अब हमारा उनसे यही एक मुतालबा है कि पासपोर्ट ऑफिस का भी इजरा किया जाए, पासपोर्ट ऑफिस का काउंटर लगाया जाए यहाँ पे, ताकि हमें दूर दराज ना जाना पड़े, क्योंकि यहाँ पे हमें तोबा टैक्सी जाना पड़ता है पासपोर्ट बनवाने के लिए। शुक्रिया। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह आपने एक शहरी की बात सुनी जो कि निहायत ही शुक्रिया अदा करते हैं चेयरमैन नादरा और डीजी नादरा का और असिस्टेंट डायरेक्टर कामरान शहजाद साहब जो कि उबर टैक्सी में बैठते हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर शहरियों के म्यार और उनकी सहूलत को देखते हुए ये दफ्तर का बेहतरीन यहाँ पर सेटअप लगाया गया। उनका मजीद ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर जो है पासपोर्ट का काउंटर भी लगाया जाए ताकि पासपोर्ट के लिए भी दूर दराज ना जाना पड़े। बहुत शुक्रिया नैयर, आपने तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़ते हुए नाज़रीन को बताएं कि सियालकोट पुलिस की मौत के सौदागर मनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। खातून समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। ड्रग फ्री पंजाब के तहत सियालकोट पुलिस ने जिले भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का आगाज कर रखा है ताकि माशरे को इस नासूर से पाक किया जा सके। इस सिलसिले में DSP सदर सर्कल इरफान सईद की निगरानी और SHO थाना सदर इरशाद अहमद की क़यादत में खुफिया इत्तला पर मबनी इंटेलिजेंस बेस्ड 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान मनशियात फरोशों में मुलविस मुलजिमा मशल से भारी मिकदार में मनशियात बरामद की गई। साथ ही दूसरी कार्रवाई में मुलजिम रिजवान के कब्जे से 11 किलोग्राम चर्स बरामद करके गिरफ्तार कर लिया गया। दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने बताया कि दीगर अजला से मनशियात लाकर सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करते थे। मुलजिमान की गिरफ्तारी के जरिए न सिर्फ मनशियात के मुकामी सप्लाई चेन को तोड़ा गया बल्कि इस घिनावने धंधे में मुलविस दीगर अनासर तक पहुंचने में भी मदद मिलेगी। DPO सियालकोट फैसल शहजाद ने कहा कि मनशियात के मुकम्मल खात्मे तक क्रैकडाउन बिला तातुल जारी रहेगा। सियालकोट के थाना कैंट की हुदूद में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात रिपोर्ट हुई। नामालूम अफराद ने 45 साला खातून को गोली मारकर कत्ल कर दिया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे इमरान अशरफ की इस रिपोर्ट में। सियालकोट थाना कैंट के इलाका बोक्त में कत्ल की वारदात। नामालूम अफराद ने घर में घुसकर 45 साला खातून जिसका नाम आमना बीबी बताया जाता है उसको कत्ल कर मौके से फरार हो गया। आमना बीबी का बेटा जब काम से छुट्टी कर घर पहुंचा तो मां को मुर्दा हालत में पाया। फौरी मुतलका थाना कैंट पुलिस को तला दी। मौके पर SHO नफारी नफरी पहुँच कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। थाना सिटी लियाकतपुर पुलिस और मुसल्लम मुलजिमान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। 2 खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पुलिस के मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोकने की कोशिश के दौरान मुसल्लम मुलजिमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले के दौरान 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान की शनाख्त सैफुल्ला झक्कड़ और हम्माद मसीह के नामों से कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिमान डकैती, रहजनी और दीगर संगीन जराइम के में मुलविस थे। गिरफ्तार डाकुओं से नाजायज असलहा कब्जा पुलिस में ले लिया गया है और DPO इरफान अली समूह की जानिब से पुलिस टीम को शाबाश भी दी गई। डेप्यूटी कमिश्नर डेरा गाजी मोहम्मद उस्मान खालिद ने तोंसा शरीफ में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उन्हें रेस्क्यू 1122 की जानिब से किए गए इंतजामात के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। तफसीलात जानते हैं सुहेल शहजाद की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद ने तौसा शरीफ में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। इस मौका पर आपने रेस्क्यू सरगर्मियों पर इत्मीनान का इजहार किया। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ज़िला तौसा शरीफ अहमद नदीम हाशमी और एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 112 ज़िला तौसा मोहम्मद इमरान भुट्टा के हमरा सैलाब से मुतासरा बेट जडलीगारी का दौरा किया। इस मौका पर महकमा इरीगेशन के अफसरान भी उनके हमरा थे जिन्होंने सैलाबी पानी की सूरत हाल पर उन्हें ब्रीफिंग दी। बाद अज़ा एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 मोहम्मद इमरान भुट्टा ने डिप्टी कमिश्नर को रेस्क्यू रिलीफ कैंप में जारी इमदादी सरगर्मियों, मुतासरा अफराद के इनखला, महफूज मकामात की फरहमी और जानवरों की मुंतकली से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर उस्मान खालिद ने मौका पर मौजूद रेस्क्यू से फर्दन मुलाकात की, उनके जज्बे और पेशावराना सलाहियतों को खूब सराहा और अवामी खिदमत के जज्बे को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू 1122 का बर वक्त रद्द अमल और मुनज़्ज़म हिकमत अमली लायक तहसीन है। इस मौका पर मकामी अफराद की बड़ी तादाद मौजूद थी, जबकि यहाँ पर मौजूद साबिक चेयरमैन मलिक मंसूर अहमद ने भी इमदादी इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए ज़िला इंतज़ामिया और रेस्क्यू एहलकारों का शुक्रिया अदा किया। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका इदारों को हिदायत की कि मुतासरा इलाकों में मुसलसल निगरानी की जाए और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारी मुकम्मल रखी जाए। सुहेल शहजाद, NTA न्यूज़, तौसा शरीफ।
थाना सिलावाली की हुदूद में मोटरसाइकिल छीनकर फरार होने वाले डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। 3 मुसल्लह डाकू शाहीनाबाद से शहरी से मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए थे। देखते हैं सिलावाली से हनीफ कलियार की इस रिपोर्ट में। बिल्कुल थाना सिलावाली में वाक़ चौकी शाहीनाबाद पुलिस को जो है इतला मौसूल हुई कि 3 कार नामालूम मुलजमान जो हैं वो 124 फाटक से 125 मोटरसाइकिल छीनकर सिलावाली की जानिब फरार हो गए हैं। पुलिस ने फौरी तौर पर नाकाबंदी की तो 115 मोड़ पर दौरान नाकाबंदी 3 मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर सीधी फायरिंग कर दी और झाड़ियों में छुप गए। पुलिस ने हक़ हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग की। फायरिंग का सिलसिला जो है वो रुकने पर दौरान सर्च ऑपरेशन एक शख्स जो वो जख्मी हालत में मिला जिसकी शिनाख्त मोहम्मद या सकना जंग की हुई है। मुलजिम के कब्जा से 125 मोटरसाइकिल और नकदी भी बरामद हुई है और मुलजिम का रिकॉर्ड चेक करने पर रावलपिंडी, सियालकोट और सरगोदा को मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब। हालिया मानसून बारिशों के बायस कमालिया, दरिया रावी, मौजा, मिल, फतियाना के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा हो गया। ज़मीनी कटाव का अमल तेज़ी से जारी है जिसके बायस दरियाई बेल्ट में वाक़ फसलें दरिया बुर्द हो रही हैं। तफसीलात जानते हैं असद राजपूत से। असद, बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त दरियाए रावी, मौजा, मल, फतियाना के मुकाम पर मौजूद हूँ। हालिया मानसून बारिशों के सबब जो है वो दरियाए रावी के पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हुआ है। इस वक्त दरियाए रावी में 16,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। कमालिया के जो दरियाए रावी के करीबी इलाके हैं जिनमें मौजा, शाबल शाह, मल, फतियाना और जलार सगला के मुकाम पर इस वक्त ज़मीनी कटाव का अमल तेज़ी से जारी है। दरिया के पेट के अंदर काश्त की गई फसलें जो है वो दरिया बुर्द हो रही हैं जिनमें चारे के साथ साथ जो है वो मकई और धान की फसल जो है सरे फहरिस्त है। मुकामी काश्तकारों ने आला हुकाम से इस सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है क्योंकि अभी तक ज़िला इंतज़ामिया और महकमा इरिगेशन की जानिब से कोई भी इंतज़ामी यहाँ पर दौरा नहीं किया गया जिसकी वजह से काश्तकार शदीद परेशान हैं। काश्तकारों ने डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग से इस सूरत हाल पर नोटिस लेते हुए दरिया के किनारों को फिलफौर जो है चेक करने का मुतालबा किया है ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से फिलफौर निपटा जा सके और काश्तकारों को होने वाले नुकसान से बर वक्त बचाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया असद, आपने तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सुथरा पंजाब मुहिम के तहत पाकपतन के शहरी और देहाती इलाकों में सफाई का ऑपरेशन जारी है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का अमला मानसून के मौसम में बारिशों को दुश्वारी से बचाने के लिए पुरज़्म है। राव रमज़ान एजाज की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत पाकपतन में सफाई सुथराई मुहिम जारी है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के डायरेक्टर महमूद मुनीर का कहना है कि शहर के साथ साथ देहातों में भी सफाई मुहिम जारी है। हम शहर के साथ साथ हाथ भी साफ कर रहे हैं, गाँवों से भी कूड़ा करकट उठाया जा रहा है। बारिशों का मौसम है ताकि नालों में कोई गंदगी वगैरह ना हो, पानी सही चल सके और ये लोग भी साफ माहौल में सांस ले सकें। देहातियों ने भी गाँव में सफाई सुथराई के बाकायदा आगाज पर हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा किया। ਪਹਿਲਾਂ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, सफाई ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ बहुत अच्छा। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत देहातों में भी सफाई के साथ साथ नालों की सफाई का अमल भी जारी है ताकि मानसून में जारी बारिशों के पानी की निकासी को यकीनी बनाया जा सके। कैमरा टीम के साथ राव रमजान इजाज, NTN न्यूज़, पाकपतन। जलालपुर पीरवाला में जुर्म साबित होने पर एडिशनल एंड सेशन जज इंतखाब आलम ने कत्ल के मुकदमे का फैसला सुनाते हुए मुलजिम आसिफ को सजाए मौत और 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। इसी हवाले से देखते हैं मोहम्मद नवाज की इस रिपोर्ट में। और पीरवाला में एडिशनल एंड सेशन जज इंतखाब आलम की अदालत ने डिप्टी प्रोसिक्यूटर हसन रजा गल्लू और इकबाल हुसैन खान बलोच एडवोकेट ने दलाल देते हुए कहा कि मुलजिम आसिफ ने 2021 में नवाई इलाका बस्ती सावन का रिहायशी बशीर अहमद खाकी को फायरिंग करके कत्ल किया था और 4 अफराद इसके कत्ल में मुलव्वस हैं जिसके कत्ल का मुकदमा थाना सिटी में दर्ज हुआ। 4 साल मुकदमा और दलाल सुनने के बाद जुर्म साबित होने पर मुअज़्ज़ज़ अदालत ने मुलजिम आसिफ को सजाए मौत और 5 लाख रुपए जुर्माना, दूसरा मुलजिम सुमारा उर्फ गोडली को उम्र कैद और 1 लाख जुर्माने की सजा, जबकि 2 मुलजमान गुलाम अली और कासिम को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया। कैमरा टीम के साथ मलिक मोहम्मद नवाज, NTN न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। अफसोसनाक खबर है, साहिवाल में झाल रोड रेलवे फाटक के करीब एक मां ने अपने 2 बच्चों समेत ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी कर ली। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मां और दोनों बच्चे मौके पर ही जाँ बहक हो गए। ताहाल जाँ बहक होने वालों की शनाख्त नहीं हो सकी। लाशों को टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वाक़या महंगाई, घरेलू परेशानी और मौशी दबाव के बायस पेश आया।
अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हालिया दिनों में खुदकुशी जैसे वाक़यात में इजाफा हो रहा है। माशी हालात के बायस अवाम शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत फौरी तौर पर माशी और नफ्सियाती रिलीफ फराहम करे। अहमदपुर शर्किया के थाना सदर की हदूद में पुरानी दुश्मनी की रंजिश पर दरिंदगी की इंतहा कर दी गई। बासर अफराद ने हमला खातून को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की। पुलिस ने खातून की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद जानते हैं इमरान अकबर से। इमरान, बताइएगा। बिल्कुल, अहमदपुर शर्किया थाना सदर की हदूद में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। वैसे तो हमने बहुत से मामला देखे हैं, लेकिन ये मामला हमें इंतहाई अफसोसनाक हमें देखने को मिला है कि एक हामला 9 माह की हामला खातून के साथ ज्यादती करने की कोशिश की गई। ये इंतहाई जो है दर्दनाक और अफसोसनाक वाक़या है, अहमदपुर शर्किया थाना सदर की हदूद में पेश आया है। इस वक्त मुतासरीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या मामला है? जी सर, ये मामला है कि मेरी बच्ची ज्यादती की साढ़े बेइज्जत की कि मेरी बच्ची हाफिज़ कुरान है। 9 महीने की हमला आई मेरी बेटी हरामखोर मुलजिम सारा जना शाहजेब और फरा बीबी वीडियो बने दे कि मेरी बच्ची नाल ज्यादती करने लगे, इनका ते हाथ पाउण की कोशिश की तो उन्होंने बाद जड़ना गला घोड़ दे दबे लगे। मेरी बेटी सवाह दी मरीज है, साह की तकलीफ हुई, गला दबाई रखे और उन्हें साह निकल रहा है। पुलिस ने कितने जाए बाद एफआईआर दर्ज? 3 दिन बाद सर। क्यों ताखिर क्यों थी? पता नहीं, कोई वजह बयान नहीं की थी। आपने दरखास्त पहले दी थी बाजी? बहुत ज्यादा ज्यादती की है, हद कर दिया, जुल्म की हद कर दी है। पेट पर लाते मारी गई है, बच्चे को मारने की कोशिश की गई है, मुझे मारने की कोशिश की गई है। जी क्या आखना चाहते तुम? मेरी बेटी है, मेरे को इंसाफ चाहिए, मैं इंसाफ चाहनी हूं, मेरी भी साफ हुए। इंतहाई शर्मनाक बात यही है कि इस तरह के मामला में हमने जितने भी प्रोग्राम किए हैं, ये कुछ अनोखा और दर्दनाक। आज हमें ये प्रोग्राम करते हुए इंतहाई तकलीफ हो रही है कि एक हमला खातून जो 9 माँ के बच्चे को जन्म देने वाली थी, उसको ज्यादती का निशाना बनाकर उसके बच्चे को हराम करार देने की कोशिश, उसके जिस्म से कपड़े नोच लेना, उसकी बदतमीज और नाजेबा वीडियो बनाना, इस तरह की जो मामला हमारे सामने आए हैं, आमतर मामला को देखते हुए हमें एक बात यकीनी तौर पर नजर आती है कि मुलजिम बास है। कसूर के नवाही गांव में भी इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। पोचके में 13 साल बच्ची के साथ ज्यादती की गई है और 24 घंटे बाद बच्ची को ढूंढ लिया गया। मजीद जानते हैं कसूर से NTA न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी सलीम से। चौधरी सलीम, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कसूर के नवाही गांव पूचके के अंदर, जहां पर 12 से 13 साल बच्ची को आइस का नशा करवाकर उससे ज्यादती की गई। मेरे साथ इस वक्त अहले इलाका मौजूद हैं, पूरा गांव सरापा एहतजाज है। इनसे जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। जी, आप बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रियाज अहमद है, मैं गांव पिंड पूचके दा रैशी है वहाँ। ठीक है, यह वाक़या होया जुम्मे वाले दिन 4 बजे मैं आ रहा सी रस्ते 'चों। इत्थे एक दुकान दे अगे मोबाइलों वाली दुकान है, तो उनका बच्ची का ना हत्थ शटर तो बाहर हैगा सी। ठीक है, तो दूसरा असी ना उनके चाचू नूं नाल लैके, अमर दे चाचू नूं जिहड़ा मुलजम है, उनके चाचू नूं नाल लैके मैं उन्होंने घर गया वां कि ना चाबी दो कि अंदर ना दुकान दे विच बच्ची हैगी है। तो उत्थे असीं 5-10 मिनट उत्थे खड़ा रहा वां, लेकिन उन्होंने मतलब कोई रिस्पोंस नहीं दिता है। उन्होंने कहा जी साढ़े कोल चाबी नहीं हैगी। असीं मैं दोबारा दुकान ते वापस आया। इत्थे होर भी बंदे हैगे सन पिंड दे जिहड़े वेख रहे सन। उन्होंने दुकान के ताले तोड़ के उन्होंने बच्ची नूं नाबाजियाब कराया है बेहोशी की हालत चो। ठीक है, तो साडी DPO कसूर के अगे अपील हैगी कि इस वाक़े का नोटिस लिया जाए तो जिहड़ी मुलजम है उन्होंने कड़ी तो कड़ी सज़ा दी जाए। उसने पैसे खाए हैं। जी, जैसा कि आपने इन एहतजाज करने वालों की बात सुनी, इनका क्या मुलव्वस है इसके अंदर, वो प्रोटोकॉल दे रहे हैं मुलजिम को, और उसके साथ और भी लोग हैं जो यहाँ पर आइस का नशा लोगों को करवाते हैं और आइस बेचते हैं। इनके अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश है कि DPO कसूर फौरी तौर पर नोटिस लें और इनको इंसाफ फराहम करें। जी, बहुत शुक्रिया सलीम, आपने आगाह किया। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से गरीब तबके से सब्जी और मसाला जात पहुंच से दूर हो गए। आम शहरी हुकूमत वक्त से रहम की अपील और महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा कर रही हैं। तफसीलात कैसर बिन से जानते हैं। कैसर, आगाह कीजिएगा। मैं अक्सर मौजूद हूँ चनियोर सब्जी मंडी के अंदर, जहाँ पर सब्जी को जो है कीमतों को पर लग चुके हैं, जबकि सब्जियों का रेट और सब्जी मसाला जात का रेट जो है आसमानों से बातें कर रहा है। अदरक की बात की जाए तो 400 रुपये किलो, थोम की बात की जाए तो 300 रुपये किलो, जबकि टिंडे की बात की जाए तो 300 रुपये किलो है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, सब्जियों की कीमतों के अंदर शदीद इजाफा, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम।
हुकूमत वक्त नाल अपील है कि मेहरबानी करो रेट कम करो। इस हद तक कि सब्जी एक टाइम का नवाला जो खाना है वो भी मुश्किल हो गया, बल्कि नवाला छिनिया जा रहा है। हुण ताज़ा ताज़ा खरीदा टिंडा 300 रुपये किलो, करेला 200 रुपये किलो, सब्ज़ मरच 100-120 रुपये किलो है, टमाटर इस टाइम 120-130 रुपये किलो है पने। हर चीज़ महंगाई इतनी हो गई है कि एक टाइम का नवाला भी गरीब आवाम को छिनिया जा रहा है। हुकूमत वक्त नाल अपील है कि मेहरबानी करके कोई तावन करो और रेटा नू कंट्रोल करो। जी बिल्कुल, शहरी का कहना है कि हुकूमत वक्त की जानिब से जो है सब्जी और सब्ज़ मिसाला जात की कीमतों के अंदर शदीद इजाफा हो चुका है, जबकि गरीब आदमी की पहुंच से बिल्कुल दूर है। अगर टिंडे की बात की जाए 300 रुपये किलो, टमाटर 120 रुपये किलो, जबकि गोभी की बात की जाए तो 250 रुपये किलो है। जबकि शहरी ने हुकूमत वक्त से अपील की खुदाया कीमतों को कंट्रोल किया जाए और गरीब तबके को जो है जीने का हक दिया जाए। जी कैसर बिन तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शुजाबाद में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है, चीनी की कीमत डबल सेंचुरी पर पहुंच गई है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं जानते हैं नुमाइंदा NTA न्यूज़ अली रज़ा कुरैशी से। अली रज़ा बताइएगा क्या कहना है लोगों का इस हवाले से। देखिए, मैं इस वक्त शुजाबाद में किराना स्टोर पर मौजूद हूँ। अगर यहाँ बात की जाए शेख खुरनोश की, तो शेख खुरनोश गरीबी की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई। अगर बात की जाए आटे की, तो आटा यहाँ पर 100 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। जो चीनी है उसकी डबल सेंचुरी हो गई है। बात की जाए घी की, तो घी के यहाँ पर जो नॉर्मल घी है वो 450 में फ़रोख्त हो रहा है। आला मयार का घी है जो 500 में फ़रोख्त किया जा रहा है। मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं इस बारे में क्या कहना है। जी बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महंगाई इतनी हो चुकी है कि आम आदमी के क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुका है। घी, आटा, चीनी सब चीज़ महंगी है। इस टाइम चीनी हम 9000 का बैग लेके आ रहे हैं, 180 रुपये हमें पड़ती है। एक्सपेंसिव डाल के हम चीनी क्या भाव बेचें। हमारी हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि फिलहाल इसको चीनी को कंट्रोल किया जाए ताकि आम आदमी की पहुंच में आ सके। हर आदमी परेशान है महंगाई की वजह से। देखिए, दुकानदार का यही कहना है जो हुकूमत है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों को काबू करे, जो कंट्रोल करे, जो गरीब है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सके। जी पंजाब फूड अथॉरिटी झंग ने जाली और मिलावटी दूध बनाने और बेचने वाले नेटवर्क को पकड़ लिया। झंग से रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद असद हयात। पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसम जवेद की खसूसी हदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी जंग ने जैली व मिलावटी दूध बनाने और बेचने वाले नेटवर्क को पकड़ लिया। फूड सेफ्टी टीम ने डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस अदनान हैदर की सरबराही में जैली व मिलावटी दूध सप्लाई करने वाली गाड़ी पकड़ ली। गाड़ी में मौजूद 1000 लीटर से ज़्यादा जैली, मिलावटी और मुज़र सेहत दूध बरामद। मुसलसल रैकी करने पर जैली दूध बनाने और सप्लाई करने वाले यूनिट पर भी छापा। मुलजिम जैली दूध तैयार करके सप्लाई करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार और मजीद 180 लीटर जैली दूध नुमा गाढ़ा महलूल बरामद। जैली दूध नुमा गाढ़े महलूल से मजीद सैकड़ों लीटर दूध तैयार किया जाना था। जैली दूध व दूध नुमा महलूल को पाउडर, आयल, ग्लूकोज और दीगर ममनू अज़ा की मदद से तैयार किया गया था। जैली दूध बनाने और सप्लाई करने वाले 3 मुलजमान गिरफ्तार और 2 मुकदमात दर्ज। जैली दूध की तरसील में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी, मोटरसाइकिल व दीगर सामान जब्त। बरामद शुदा तमाम 1180 लीटर जैली दूध व दूध नुमा महलूल मौका पर ही तलफ कर दिया गया। DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसम जवेद का कहना है जैली दूध बनाने व बेचने वाले किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं। ज़्यादा मुनाफा के लालच में आवाम की सेहत से खिलवाड़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सैयद असद याद, NTA न्यूज़, जंग।